Let's move further with our advanced query session. In the previous session, we have learned how to group the records. And today we will be learning how to filter the group of records which we have created. The where clause is used to filter all the records. Remember, the where clause is used to filter all the records. टेबल में जितने भी डेटा हैं वो डेटा को अगर आपको फिल्टर करना है तो आप कौन सा क्लॉज यूज करेंगे? वेयर क्लॉज यूज करेंगे। अब हमने ग्रुप बाय क्लॉज सीखा है। ग्रुप बाय क्लॉज का काम क्या है? डेटा को ग्रुप करना। जहां पर जिस कॉलम में सेम डेटा है वहां पर कॉलम्स को क्या करना है? हमें ग्रुपिंग करना है। Now what we can do is, after forming the groups, we can filter the data of the groups. Now filtering is done, but the filtering is done on the groups of the data which have been created by us. And remember this thing, that we are filtering the data and we are forming the groups only while viewing the data. There are not any changes in your data which is in the table. टेबल में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जो भी चेंजेस हो रहे हैं सिर्फ आप जब डेटा को व्यू कर रहे हो तभी हो रहे हैं। Now to form a filter in the groups, you have to use having clause. Means what? Having clause can only be used by group by clause. You can't use having clause independently. आप having clause को बिना group by clause के use नहीं कर सकते. The having clause is associated with grouping queries and it is totally optional. It is not compulsory to use the having clause with group by clause. So the complete syntax of the select statement when using the group by and having clause is: select columns from table name where group by columns having condition. Like the where clause, having clause filters the query result rows. Where filters the rows from the from clause. As I told you that where will filter what? All the rows of the select statement. Whereas having clause will only filter the rows of what clause? Group by clause. Having filters the grouped rows only. Fine. If both where having clause are present in the query, now if you are using both the clauses at the same time in the select statement, अगर आप where and having clause को एक ही बार में यूज कर रहे हो तो पहले आपका where clause एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद group by clause एग्जीक्यूट होगा एंड फाइनल जो रिजल्ट आता है उसके ऊपर having clause अप्लाई होगा। When you are using all the three clauses together, where, having and group by clause, then the order of execution will be: first the data will be filtered, all the data of the table will be filtered by applying where clause. Then after the filtered data, from that the groups will be formed, and after that when the groups are formed, the having clause, again the filter will be applied, and that filter will be applied where? In the groups. Using which clause? Having clause. Now for example, display the name of cities where more than 2 students are coming. अब यहाँ पर आपको पता है कि city जो है that is the address, and address is duplicate. As I explained, it can be Daman, Vapi, Valsad, Navsari, anything. Now what you have to find is, you have to find the name of cities. सिर्फ उन cities का आपको नाम जानना है जहाँ से 2 से ज़्यादा students आते हैं। तो हमें ग्रुपिंग किसके ऊपर करनी है? सिटीज के ऊपर करनी है। सिटीज का मतलब क्या है? कौन सा कॉलम? एड्रेस। तो हमारी पहली क्वेरी क्या होगी? सिलेक्ट एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय एड्रेस। इतना हमने ग्रुप्स फॉर्म कर लिया। अब हमें डेटा किसका चाहिए? सिर्फ और सिर्फ उन सिटीज का डेटा चाहिए जहां से 2 से ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं। यानी अब हमें फिल्टरिंग अप्लाई किस पे करना है? ग्रुप्स पे फिल्टरिंग अप्लाई करना है। तो अब हम लिखेंगे हैविंग काउंट एड्रेस ग्रेटर देन 2। काउंट फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? रोज का काउंट रिटर्न करेगा। तो रोज का काउंट कौन सी फील्ड में? एड्रेस फील्ड में कितना होना चाहिए? 2 से ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं? ग्रेटर देन 2।
तो ये क्वेरी हमें आंसर में क्या रिटर्न करेगी? नेम ऑफ सिटीज फ्रॉम वेयर मोर देन 2 स्टूडेंट्स आर कमिंग. नाउ when you are using all the clauses in a select statement, सिलेक्ट स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीजें आप यूज करते हो? वेयर क्लॉज यूज करते हो, ग्रुप बाय यूज करते हो, हैविंग यूज करते हो एंड ऑर्डर बाय यूज करते हो. वेयर क्या करता है? इट फिल्टर्स द डेटा ऑफ द टेबल, द रॉ डेटा विच इज इन योर टेबल, it is getting filtered. Then from that filter you can form the groups, and after the groups, having clause you can apply, that means filter on the groups, and finally you can arrange them in an ascending or descending order by using which clause? Order by clause. Now the order of execution will be what? फ्रॉम, दैट इज टेबल. टेबल का नाम कंपलसरी फ्रॉम क्लॉज के साथ ही आता है. उसके बाद ऑप्शनल क्लॉज है वेयर क्लॉज, जहां पर आपका फिल्टरिंग पूरे डेटा पे अप्लाई होगा. उसके बाद डेटा पे फिल्टर अप्लाई होने के बाद आप क्या कर सकते हो? ग्रुप में आपका डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो. ग्रुप में ऑर्गेनाइज हो गया, उसके बाद आप ग्रुप के ऊपर भी फिल्टरिंग कर सकते हो यूजिंग हैविंग क्लॉज. फाइन. एंड फाइनली जब ये पूरा डेटा आ जाएगा तब आप क्या कर सकते हो? उसको सॉर्टिंग कर सकते हो एंड फाइनल आपका रिजल्ट आपको मिलेगा. Now once again we'll repeat the sorting of data. There were many queries regarding sorting of the data. Sorting का मतलब क्या है? Ordering of the data. Ordering का मतलब क्या है? आप डेटा को अरेंज कर सकते हो पर्टिकुलर ऑर्डर में. ऑर्डर हो सकता है नंबर वाइज, दैट इज 1 to 10 और n, और इट कैन बी n to 1 डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो सकता है, ए से लेके जेड तक ऑर्डर में हो सकता है, या तो जेड से लेके ए में. आपके अगर फोन आपने यूज करते हो तो फोन में आपके कॉन्टेक्ट्स जो हैं वो कॉन्टेक्ट्स किस ऑर्डर में स्टोर होते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. आप कोई भी नाम स्टोर करोगे लेकिन वो नाम पर्टिकुलर अल्फाबेट के नीचे आ जाएगा. तो सेम चीज है आपका, अगर आपको रिकॉर्ड को देखना है और देखते टाइम आपको ऑर्डरिंग फाइंड करनी है तो आप कौन सा क्लॉज यूज कर सकते हो? ऑर्डर बाय क्लॉज यूज कर सकते हो. बाय डिफॉल्ट आपकी सॉर्टिंग जो डेटा की होती है असेंडिंग ऑर्डर में होती है. असेंडिंग का मतलब क्या है? छोटे से बड़े नंबर पे जाना, या छोटे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लेके बड़े अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाना. तो आपका सिलेक्ट स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे आप? सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल, ऑर्डर बाय कॉलम 1 कॉलम 2. असेंडिंग बाय डिफॉल्ट है तो आप एएससी नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपको डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो कंपलसरी आपको डीईएससी लिखना ही पड़ेगा. फाइन. नाउ सपोज आपको फाइंड करना है, ऑर्डर बाय करना है, सॉर्टिंग करना है, लेकिन सॉर्टिंग करने से पहले आपको डेटा को फिल्टर्ड रखना है. तो वंस अगेन यू कैन अप्लाई वेयर क्लॉज. वेयर क्लॉज के बाद आप ऑर्डर बाय क्लॉज यूज कर सकते हैं. अगर आप ऑर्डर बाय क्लॉज में एक से ज्यादा कॉलम के ऊपर सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं, अगर आप ऑर्डर बाय क्लॉज में एक से ज्यादा सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं तो पहले क्या होगा? पहले कॉलम पे सॉर्टिंग होगी एंड फाइनल जो डेटा आएगा उसके ऊपर वापस से सेकेंड कॉलम के ऊपर सॉर्टिंग होगी, दैट इज प्राइमरी कॉलम एंड सेकेंडरी कॉलम. थैंक यू.